एक और बार परमेश्वर को स्तुति, धन्यवाद, आराधना करने को, कई विषयों के लिए प्रार्थना करने को प्रभु ने प्रत्येक अवसर में प्रदान किया। महान परमेश्वर की दया के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം വളരെ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം എത്ര സൂക്ഷിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ പകരേണ്ടതിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോട് ദിവസത്തിലായിരിക്കാം. थोड़ी देर की विचार के लिए हम इब्रानियों की पत्री उसकी 13 अध्याय की पहले से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे. इब्रानियों की पत्री इब्राय लेखനം 13 അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ 13 verse 1 to 6. സഹോദരപ്രീതി നിലനിൽക്കട്ടെ, അതിൽ സൽക്കാരം മറക്കരുത്. അതിനാൽ ചിലർ അറിയാതെ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളും തടവുകാർ എന്ന പോലെ തടവുകാരെയും നിങ്ങളും ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാകിയാൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നതിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ. വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യവും കിടക്കെ നിർമ്മലവുമായിരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ ദുർനടപ്പുകാരെയും വ്യഭിചാരികളെയും ദൈവം വിധിക്കും. നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവീൻ. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാൾ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്ന് അവൻ തന്നെ അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ആകയാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ, ഞാൻ പേടിക്കയില്ല. മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം. परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो. इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें प्रत्येक बातों को बताना चाहते हैं. ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റുകളാണ് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Let brotherly love continue. भाईचारे की प्रीति बने रखो. 6-7 കമാൻഡ്മെന്റ്സുകളാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്. इस अध्याय में 25 आयतें हैं और ये 25 आयतें कई रीति से हमसे बातचीत करते हैं. ചില വേർഷനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഹോണർ ഓൾ men, love the brotherhood, fear God and honor the king. 1 പത്രോസ് ലേഖനം 2 അധ്യായത്തിന്റെ 17 വാക്യത്തിൽ, 1 Peter chapter 2 verse 17, വാക്യം വായിക്കാം. 1 Peter chapter 2:17. എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിപ്പീൻ, സഹോദരവർഗത്തെ സ്നേഹിപ്പീൻ, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവീൻ, രാജാവിനെ ബഹുമാനിപ്പീൻ. देखो, ये 4 बातें यहाँ पर पवित्र आत्मा हमसे बताते हैं. honor all men, love the brotherhood, honor the king, fear God. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമാൻഡാണ്. 1 Peter chapter 2 verse 17, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा की सम्मान करो. असीसो, हम इस दुनिया में रहने के समय हमारे जीवन में बहुत सारे उत्तरदायित्व को निभाना आवश्यक. നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതായ അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട്. There are many things that we have to fulfill. If we are not fulfilling those things, so that is against the commandments of God, against the commands of God. नाम ई लोकത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ हम इस दुनिया में रहने के समय में अवश्य ये बातों को करना है. These are the 4 important factors Apostle Peter is commanding to the believers. വിശ്വാസികളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുക. honor all men, सारे मनुष्य को आदर करो, love your brotherhood, भाइयों को प्यार करो, fear God, परमेश्वर को डरो, honor the king, राजा को सम्मान करो. This is the great commandment that God has given us. Why we should honor all men? एक दूसरे को
सम्मान करने की आवश्यकता क्या है? कोई भी मनुष्य को तुच्छ नहीं समझना है. ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും നാം പരിഗണിക്കാതിരിക്കരുത്. എളിയവരെ ആദരിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ, അനർത്ഥത്തിൽ അവൻ സഹായം കണ്ടെത്തും. और कमजोरों को हम आदर करने के द्वारा हमारी कमजोरियों में भी हमें परमेश्वर कंसिडर करेगी, क्योंकि परमेश्वर हर एक मनुष्य को अपने स्वरूप और सदृश्य में बनाया है. God made all human being according to his image and likeness. चाहे भिखारी हो, चाहे कंगाल हो, चाहे धनवान हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, और चाहे निर्बुद्धि हो, चाहे बुद्धिमान हो, कोई भी क्यों न हो, इस दुनिया की हर एक मनुष्य परमेश्वर की अस्तित्व या परमेश्वर की जो इमेज और लाइकनेस, स्वरूप और सदृश्य को प्रकट करते आ रहा. മനുഷ്യൻ ധനവാനായാലും ദരിദ്രനായാലും പണ്ഡിതനായാലും പാമരനായാലും ഉന്നതനായാലും താഴ്ന്നവനായാലും എല്ലാ മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തെ പ്രകടമാക്കുന്നവരാണ്. इसलिए बाइबल बताते हैं कि किसी व्यक्ति, याकूब की पत्री में याकूब पोस्टल ने इस प्रकार जो बताया, याकूब लेखनത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിപ്പാൻ കഴിയുന്നത്. और परमेश्वर के दास ने हमारे सामने इस प्रकार जो बताते हैं कि धनवान और अपने धन पर किसी भी तरह से घमंड नहीं करना चाहिए. ധനവാൻ ഒരു കാരണവശാലും അവൻ തന്റെ ആ ഉന്നതിയിൽ പ്രശംസിക്കരുത്. दूसरी अध्याय में उसकी 5वां आयत में 5 वाक्य, 2 अध्यायത്തിന്റെ 5 वाक्यത്തിൽ याकूब की पत्री दूसरी अध्याय की उसकी 5वां आयत में പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ കേൾപ്പീൻ. हाँ ദൈവലോകത്തിൽ ദരിദ്രരായ വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരും हाँ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളുമാക്കേണ്ടതിന് हाँ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലയോ? हाँ നിങ്ങളോ ദരിദ്രരെ അവമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. हाँ ധനവാന്മാരല്ലയോ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത്? हाँ അവരല്ലയോ നിങ്ങളെ ന്യായസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇഴച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നത്? हाँ നിങ്ങളുടെ മേൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല നാമത്തെ അവരല്ലയോ ദുഷിക്കുന്നത്? हाँ എന്നാൽ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് തിരുവെഴുത്തിന് ഒത്തവണ്ണം हाँ രാജകീയ ന്യായപ്രമാണം നിങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നന്ന്. बस ये वचन में इस प्रकार जो दिया 5वां आयत से लेकर, मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना की? God choose poor people in the world. If you are not poor in faith, if you are not considering yourselves nothing before God, then only God will consider you. ഈ വാക്യത്തിൽ വായിപ്പാൻ കഴിയുന്നത്, യാക്കോബ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ കേൾപ്പീൻ, ദൈവം ലോകത്തിൽ ദരിദ്രരായവരെ विश्वासത്തിൽ संपन्नर, विश्वास में धनिक बनने को प्रभु ने हमें चुन लिया. God choose us when we considered we are wretched people. നാം ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി അഭാഗ്യ മനുഷ്യരായിരുന്നപ്പോൾ हम अभाग्य मनुष्य थे, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें चुन लिया ताकि हम विश्वास में धनी बन जाए. अजीजों, ये वचन में इस प्रकार पवित्र कलाम में जो बताते हैं कि चुन लिया कि धनी और उस राज्य की अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनको और उससे प्रेम रखते हैं. ദൈവം അവരെ സ്നേഹിച്ച്, യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ കേൾപ്പീൻ, ദൈവം ലോകത്തിൽ ദരിദ്രരായവരെ വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്തം രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളുമാക്കേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലയോ? God always remember the poor.
परमेश्वर ने इस दुनिया में धनवान को और उनके सामने दरिद्र इस प्रकार की कोई पक्षपात नहीं है। एक व्यक्ति खुदा के सामने आते समय यह समझना चाहिए मैं कुछ भी नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे ऊपर दया किया है। गॉड शोड हिज मर्सी अपॉन मी। कुरिन्थियों की पत्री में भी प्रेरित पौलुस ने यह बात को हमारे सामने जो स्थापित किया है। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसकी दूसरी अध्याय में प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार जो बताते हैं, पहले अध्याय में उसकी 27वां आयत में, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 27 में और 26 से लेकर ये बात हमारे सामने जो स्थापित करते हैं, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 26 onwards, 25 onwards, 26. സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുവിൻ. ആ. ലോകാഭിപ്രായപ്രകാരം ജ്ഞാനികൾ ഏറെയില്ല, ആ. ബലവാന്മാർ ഏറെയില്ല, ആ. കുലീനന്മാരും ഏറെയില്ല. ആ. ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ഭോഷത്വമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആ. ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने तो सोचो ना, शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान नहीं है। बाइबल जो बताते हैं परमेश्वर किसी को चुनाया हुआ है, वो व्यक्ति ज्ञानवान होने के कारण नहीं चुना है। अब समझना चाहिए हमें परमेश्वर ने किस कारण में हमें चुन लिया है। वाई गॉड चूज अस। और ना बहुत सामर्थ्य और ना बहुत कुलीन ना बुलाए गए। इफ यू आर कॉल्ड एंड सेट अपार्ट फॉर गॉड, परमेश्वर ने आपको बुला के अलग किया है, तो परमेश्वर की पवित्र शास्त्र आपको इस प्रकार जो बताते हैं कि आप ज्ञानवान होने के कारण नहीं है, अब सामर्थ्य होने के कारण नहीं है, अब कुलीन होने का कारण नहीं है। फिर क्यों? 27वां आयत में परमेश्वर के दास ने इस प्रकार जो बताए जाते, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हमारे पास कोई खूबी नहीं था, हमारे पास कोई बड़ी अवस्था नहीं था, ताकि खुदा ने हमें चुन लिया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, നമ്മുടെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്। तो इसलिए परमेश्वर की पवित्र शास्त्र बार बार हमें अनुरोध करते हैं, और परमेश्वर की पवित्र शास्त्र में नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ आज्ञाओं से सबसे महान 2 आज्ञा है। एक तो लव योर गॉड, पहला जो है तुम्हारी परमेश्वर को तुम्हारी पूरी मन से, पूरी दिल से, पूरी शक्ति के साथ उनकी प्रेम रखो। दूसरी जो है याकूब ने इस प्रकार जो बताया कि लव योर नेबर एज योरसेल्फ, दिस इज ए रॉयल कमांडमेंट। तुम्हारे पड़ोसी को तुम जैसे प्यार करो, एक राजकीय कमांड है। दिस इज ए रॉयल कमांडमेंट, इधर राजकीय कल्पनायाണ്। तो हम एक दूसरे को honor all men. Why we are honoring others? Why we love our brothers? Why we love others? Because when you love others, you are seeing the image and likeness of that person of in God. आपने एक दूसरे को प्यार करने के समय में आप ये समझना चाहिए कि कारण उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की छाया और परमेश्वर की परछाई, परमेश्वर की इमेज और लाइकनेस उनमें है। We love others because when I love others, I behold the image and likeness of God in that person. परमेश्वर की जो प्रतिच्छाया, परमेश्वर की इमेज उस व्यक्ति के अंदर है। നമ്മുടെ അകത്ത് മറ്റ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുവാൻ കാരണം ദിസ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. നാം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത്, ടു ലവ് അതേഴ്സ് ഈസ് എ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി.
There are three type of responsibility that God has given as a child of God in this world. We are given. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന 3 റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികളാണ്. 3 ഉത്തരവാദിത്തം. Number 1 social responsibility. Number 2 spiritual responsibility. Number 3 personal responsibility. നമുക്ക് 3 ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. There are 3 ഉത്തരവാദിത്തം. പല സാമാജിക ഉത്തരവാദിത്തം, ഒന്ന് സാമൂഹ്യമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. हम अकेला नहीं इस दुनिया में, हम एक समाज. परमेश्वर ने आदम को सृष्टि करने के बाद उनको और संतान उत्पादन और परिवार भी दिया था. God gave him a family. तो एक समाज है. उस समाज परमेश्वर ने क्यों दिया? क्योंकि समाज में कुछ उत्तरदायित्व है. इसलिए कोरिन्थियों की पत्री, रोमियों की पत्री, गलातियों की पत्री आदि पत्री में बार बार प्रेरित पौलोस ने हमें याद दिलाते दरिद्रों को भूलना नहीं. അതുകൊണ്ടാണ് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ, റോമാ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് അനവധി പ്രാവശ്യം ഓർപ്പിക്കുന്ന ദരിദ്രരെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. बार बार परमेश्वर की पवित्रता इज अ सोशल लाइफ. We are having a social life. अब ये वर्तमान काल में बहुत बड़ी मुश्किल चल रहा है. ये कालघट्टम വളരെ संकटത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. आपको शायद भोजन के लिए होगा, पर आपकी पड़ोसी के बारे में, आपके अगल बगल में रहने वाले व्यक्तियों के बारे में आप कभी सोचते हैं क्या? आपकी सेम इमेज और लाइकनेस में बनाया हुआ व्यक्ति आप 3 बार खाते समय 1 बार भी भोजन नहीं है तो अब कभी उसके बारे में सोचते हैं? നാം എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? പ്രിയരെ, നാം 3 പേരും കഴിക്കുവാൻ ആഹാരം ദൈവം തന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽവാസിയായ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ അവർക്കത് കഴിക്കുവാനില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശാപം എന്ന് പറയുവാനല്ല. We should show the brotherly love. आपको जो दिया है सब दान है. इब्रानियों की पत्री पहले 13 अध्याय की पहले से लेकर 3 तक सोशल लाइफ, और दूसरी बात जो है 6वां अध्याय 4 से लेकर 6 तक प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ, और 7 से लेकर 17 तक रिलीजियस लाइफ. इस प्रकार इब्रानियों की पत्री में ये सारी बात हमारे सामने जो प्रस्तुत करते हैं. मैंने एक नंबर जो नोट्स जो आपको देख सकता है. तो यहां पर परमेश्वर की पवित्र शास्त्र आगे हम बताना चाहता हूं. आगे इब्रानियों की पत्री में नेक्स्ट वर्ष में हम देख सकता है. അതിനാൽ 13 അധ്യായ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് അതിഥി സൽക്കാരം മറക്കരുത്. ഡു നോട്ട് നിഗ്ലക്ട് द गेस्ट. हिंदी में इसको जो दिया गया है अतिथि सत्कार नहीं भूलना है. So these 2 things are interrelated. 2 बात यहां पर पहली आयत में जो दिया गया है भाईचारे की प्रीति बनी रहे. हिंदी में एक ही वचन दिया है, मगर मलयालम में ये दोनों एक ही वचन में 2 वचन में दिया गया है. മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 1ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സഹോദരപ്രീതി നിലനിൽക്കട്ടെ, അതിസൽക്കാരം മറക്കരുത്. ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ്. മലയാളത്തിൽ 2 വാക്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ പറയുന്നത്, വാക്കുകളും सेंटेंसेस. പക്ഷെ ഹിന്ദി 2 വാക്കാണ്. हिंदी में दोनों अलग वर्ड्स में जो दिया गया है भाईचारे की प्रीति बनी रहो, और दूसरी अतिथि सत्कार को नहीं भूलना. दोनों इंटररिलेटेड. आपके जीवन में एक सामाजिक व्यक्तित्व है. मैं और आप एक सामाजिक व्यक्तित्व भूल गया तो
हमारे मनुष्यत्व इंसानियत भी खत्म होते जा रहा है। बाइबल ये बात को बार बार हमें अनुरोध करते हैं। आप कभी भी और मैं कभी भी ये दोनों बात को छोड़ दिया तो ये समझना चाहिए हमारी सामाजिक जीवन की इंसानियत खत्म होते जा रहा है। बाइबल ये बार बार ये बताते हैं, ये दोनों आप करने को तात्पर्य आपके अंदर से खत्म हो गया तो इसका मतलब आपके अंदर से और मेरे अंदर से इंसानियत नष्ट हो जाती है। When you and me lose these two characters, social characters in your personal life, in you and in me, our humanity is losing in us. നമ്മുടെ അകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറക്കരുത്। हमारे अंदर से इंसानियत नष्ट हो जाते, शायद हमें मालूम नहीं होगा। अतिथि सत्कार को करने के द्वारा आगे वहां पर जो लिखा गया है, क्योंकि അതിഥി സൽക്കാരം മറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, അതിനാൽ ചിലർ അറിയാതെ ദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ। हिंदी में उसको इस प्रकार जो दिया गया है, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों को आदर सत्कार किया है। इसका मतलब है आप किसी अतिथि को आप सत्कार करने के समय शायद आपके घर में एक स्वर्गदूत होगा, अतिथि होके आया। देखो, यहाँ पर स्ट्रेंजर्स क्रिश्चियन ब्रदर फ्रॉम अदर प्लेसेस में एंजल्स के बारे में उत्पत्ति के पुस्तक 18 अध्याय और 19 अध्याय और न्यायों की पुस्तक 6वां अध्याय, इन सारे अध्यायों में हम देख सकता है अतिथियों को कैसे सत्कार किया। उत्पत्ति पुस्तकम 18-19 അധ്യായങ്ങളിലും ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിന് 11 മുതൽ 24 വരെയും 13-ാം അധ്യായത്തിലും ഇവിടെല്ലാം അതിഥി സൽക്കാരത്തെ കുറിച്ച് കാണാൻ കഴിയും। सारे जगहों में अतिथियों की सत्कार के बारे में जो बताते हैं, शायद एक स्वर्गदूत एक भिखारी के रूप में, शायद एक स्वर्गदूत ने एक गरीब के रूप में, शायद एक स्वर्गदूत एक अतिथि के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। क्योंकि आपकी इंसानियत नष्ट है या नहीं है इसके बारे में परखने को, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനായിട്ടായിരിക്കാം, ഒരു ദരിദ്രനായിട്ടായിരിക്കാം, ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിട്ടായിരിക്കാം ഒരു സ്വർഗദൂതൻ നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുവാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്। പക്ഷേ याद रखो, आपकी आशीष उस विषय पर है। आगे उसमें जो लिखा गया है, ഇതിനാൽ ചിലർ, നിങ്ങളും തടവുകാരെന്ന പോലെ, തടവുകാരൻ तीसरी आयत, आगे देखिए तीसरी आयत, निंगलम क्योंकि कैदियों की ऐसी सुधि लो कि माने उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ तो बुरा बर्ताव किया जाता उनकी भी वो समझकर सुधि किया करो, हमारी देह। മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങളും തടവുകാരെന്ന പോലെ തടവുകാരെയും നിങ്ങളും ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നവരാകിയാൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരെയും ഓർത്തുകൊള്ളുവി। റിമെമ്പർ those who are affliction in their body, शरीर में दुख सहन करने वाले व्यक्तियों को याद करना बहुत बड़ी अनिवार्य बात है। ये आपको छोड़ नहीं सकता है, आप ये नहीं समझ सकता और मैं कभी नहीं समझ सकता। मेरी पास है, मेरी जो बल के कारण और मेरी आशीष के कारण, और दूसरी ये नहीं है उनकी श्राप के कारण, ये नहीं बोल सकता है।
ഞാനോ നിങ്ങളോ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന നന്മകൾക്കെല്ലാം കാരണം നമ്മുടെ കൂബിയല്ല, നമ്മുടെ കഴിവല്ല, നമ്മുടെ പ്രാപ്തിയല്ല. ये सारे खुदा की दान है, ये खुदा की दान है। इसी ये समझना चाहिए आपके जीवन में जो परमेश्वर ने जो दिया गया है ये दान है। एक ज्ञानी ने, एक फिलोसोफर ने एक बार इस प्रकार बताया, आपके पास जो सिक्का होता है, सिक्का कोई चकोर नहीं है, ये റൗണ്ട് है. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിരിക്കുന്ന പണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാണയം അതൊരു ചതുരമാണോ അതോ റൗണ്ട് ആണോ? ये राउंड है। ये आपके पास जो सिक्का सरकार ने बना के दिया है राउंड है, चकोर नहीं है, स्क्वायर नहीं है. എന്തിനാണ് അത് റൗണ്ടായി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം ഫിലോസഫർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റോൾ അവേ, वो रोल अवे, वो लुट कर जाएगा, आज उरुंडंग बहु हाथ में रखने का नहीं है. आप एक सिक्का नीचे रोल करके देखो कहां जाएंगे कोई पता नहीं है. इसी प्रकार धन आएगा और जाएगा, एक पक्षी के समान उड़ जाने वाला है. ये हम दूसरे की प्रति प्रकट करने वाला है. असीसो याद रखना, परमेश्वर ने आपके पास और मेरे पास जो दिया है ये सारे वस्तु खुदा की दान है. These are the gift of God, so we must have it to spend it to honor others. हम दूसरे को सम्मान करने की प्रति, മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ഇത് ഷെയർ ചെയ്തേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. उसका कारण भी वो तीसरी आयत में जो दिया गया है, മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ കാരണമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന. कारण കൈദിയോങ്കോ ഐസി സുഖിയിലോ, നിങ്ങളും തടവുകാരെന്ന പോലെ തടവുകാരെയും നിങ്ങളും ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാകയാൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരെയും ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ. रिमेंबर, आपको भी एक कष्ट आएगा. अगर आपको भी कोई करुणा प्रकट नहीं किया तो आप कितनी दुखी हो सकता है. इसलिए हमारे सामने ये वचन प्रस्तुत करते, आप हमेशा दूसरे को भी याद करने आवश्यक है. अजीजों, याद रखना है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग तिरस्कार मत करो. सभोपदेशक के पुस्तक में इस प्रकार एक वचन है एक्लीसियास्टिकस में, और तुम्हारे पास जो है और जो कुछ चीज है वो 7 भाग और 8 भाग में विभाजन करो. സഭാപ്രസംഗിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒന്നിനെ 7ആയിട്ടോ 8ആയിട്ടോ അതിനെ വിഭാഗിച്ചു കൊള്ളുവീൻ. हमारे पास जो 11 अध्याय एक्लीसिया सभोपदेशक 11 अध्याय की पहले और दूसरी आयत, सभोपदेशक 11 अध्याय की पहला और दूसरी आयत. अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा. और 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे. 8 जनों को, हिंदी में उसको जो दिया गया 8 जनों को, और उसको भाग दे, क्योंकि तू वही जानता पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगा. What is the meaning of it? आपकी रोटी पानी के ऊपर डाल दो, रोटी जल के ऊपर डाल दो, वो बहने दो, जाने दो. आपके पास जो चीज बहने का मतलब शायद वो वापस नहीं आएगा, ऐसे बहने देता है. क्यों बहने देता है? क्योंकि ये नदी के
अगल बगल में कई लोग रहते, शायद उन लोगों की जरूरत हो गई रोटी, आप इसको बहने दो, डाल दो, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। मगर बाइबल जो बताते है कि आपने जो पानी पर फेंक दिया वो जरूर आपके पास वापस आएगा। और नेक्स्ट वर्ष में 7 और 8 आपके पास जो है, मेरे पास जो है, केवल हम स्वार्थी नहीं बनना है, हम दूसरे के बाढ़ने की आवश्यकता है। हम पर जो बताया कि आपकी धन और मेरी धन कम से कम 8 भाग करना है। हम हमारे लिए, हमारे संतानों के लिए, बाकी किसी को नहीं है। बाइबल में बताते हैं कि आपकी और मेरी जो दान परमेश्वर ने दिया है, यह सब कम से कम 7 और 8 भाग में करना होगा। इट शुड बी इक्वली डिवाइडेड। हम डिवाइड करते हैं हमारे खाने के लिए और हमारी संतानों के लिए, और थोड़ा बहुत छत में, फिर बाद में बैंक की खाता में डाल देते। बाइबल क्या बताते हैं? गरीबों को सामाजिक रूप से भाईचारे की बात, ये सारे हम भूलना नहीं है। रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। कई साल होने के बाद भी, इसलिए बाइबल में आगे, इब्रानियों की पत्री में आगे जो बताया गया कि 5वां अध्याय, നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹമില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ, ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവീൻ, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല। यहां जो तुम्हारी स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारी पास है उसी पर संतोष करो। धन ऐसी एक चीज है, कभी भी संतृप्त नहीं होता है। धन ऐसी चीज है, कभी भी संतृप्त नहीं देता है। वो आने दो। 5 करोड़ कमाई होने वाला व्यक्ति भी वो आने दो, और 5 करोड़ आने दो। 10 करोड़ वाला भी बोलेंगे और 10 करोड़ आने दो। इसका एक स्वभाव है, कभी भी ये संतृप्त नहीं होता है। धन कभी भी संतृप्त नहीं होता है, और बटोर करके इकट्ठा कर देता है। बाइबल ये बात को हमारे सामने जो बताते हैं कि जो कुछ 5वां आयत में, तुम्हारी स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आपकी कहा। परमेश्वर ने क्या कहा है? God has given us a great commandment। खुदा ने एक बड़ी आज्ञा हमें इसके बारे में जो दिया गया है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा न भी त्यागूंगा। ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല। आपने ये कैरेक्टर, अतिथि सत्कार और भाईचारे की कैरेक्टर के प्रकट करने के समय जो आपने दे दिया है, उसकी वजह आप कभी कंगाल नहीं होता है, आप कभी भी दरिद्र नहीं होता है, आप धनवान बनते जा रहा है। इसलिए बाइबल मत्ती की सुसमाचार में हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इस प्रकार जो बताया कि इस दुनिया में धन बटोर नहीं करना, वो जंग लगेगा और कीड़ा खाएंगे। 6वां अध्याय की 19वां आयत, मत्ती की सुसमाचार 6वां अध्याय की 19वां आयत में മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിപ്പാൻ കഴിയുന്നു. പുഴുവും अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, क्योंकि वो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं।
और जगह चोर और सेंग लगाने के चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जगह न तो कीड़ा न काई बिगाड़ते हैं, और जगह चोर न सेंग लगाते और न चुराते। स्वर्ग में हम स्वर्ग राज्य में जाने के लिए तैयार है, मगर स्वर्ग राज्य के लिए हमें क्या कुछ आरक्षित किया है? We all are interested to go to heaven, but how many of us are reserved certain things? धन स्वर्ग में कुछ चीज को इकट्ठा किया है। सभी लोग स्वर्ग में जाने को तात्पर्य है, मगर आप स्वर्ग में जाने को वहां पर आपने कोई धन इकट्ठा किया है? स्वर्गीय बातों के बारे में आपने कितनी बार सम्मान किया है? आपके आत्मिक जीवन के बारे में कभी सोचते हैं मेरी आत्मिक जीवन की प्रगति किस बात पर है? असीसो, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुकूमत दिया है। सो इब्रानियों की पत्री में आखिरी और सर्व प्रसिद्ध कमांड जो दिया है, honor और honor your brother, let brotherly love continue। हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकता है, तो हम जो परमेश्वर को जो प्यार करते हैं ये कपट है, पाखंडी है। നാം കൂട്ടു സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുവാനോ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം വെറും കപടമാണ്. So we should love as others. हम दूसरे को प्यार करने के द्वारा हमारी जीवन की यह सच्चाई को पेश करते हैं। और परमेश्वर ने ये पांचों आयत में ये बात हमारे सामने क्यों प्रस्तुत करते? क्योंकि ये पांचों आयत में जो आप देने के बाद कभी भी कंगाल नहीं होगा, आप कभी भी अनाथ नहीं होगा, आपको कभी भी परमेश्वर तिरस्कार नहीं करेंगे। गॉड नेवर लीव यू। आपको परमेश्वर ने कभी त्यागेगा नहीं। ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല. ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ദൈവം ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തവനാണ് ദൈവം। इस महान परमेश्वर की प्यार, इस महान परमेश्वर की करुणा के सामने अपने आप को समर्पित करें। छठवां आयत भी बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। 6 वाक्यम, ആകയാൽ കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ, ഞാൻ പേടിക്കില്ല, മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ധൈര്യത്തോട് പറയും। इसलिए मैं निडर होकर ये कहते हैं, निडर होकर ये कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मनुष्य को डरना एक भयानक प्रॉब्लम है। नीति वचन के पुस्तक में इस प्रकार जो दिया है, मनुष्य की डर एक जाल है। സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, മനുഷ്യ ഭയം ഒരു കെണിയാണ്। मनुष्य को डरने वाला व्यक्ति परमेश्वर की राज्य में प्रवेश भी नहीं हो सकता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में इस प्रकार जो दिया है, मनुष्य को डरने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होता है। और डरपोक कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। और इसलिए हम किसी भी तरह से इस प्रकार की कार्यों को डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशा दिया गया है। अजीजो, मैंने ये शब्दों को समाप्त करने से पहले हम परमेश्वर को डरने के बारे में जो बताते हैं, यूहन्ना की पत्री में भी ये बात हमारे सामने जो प्रस्तुत करते हैं, തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കി കളയുന്നു, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है।
हमारे अंदर एक सिद्ध प्रेम पैदाइश होना अनिवार्य है। कई बार हमारे अंदर परमेश्वर की यह प्रेम नहीं होता है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय की 18 आयत में जो लिखा, पहला यूहन्ना 4 की 18। സ്നേഹത്തിന് ഭയമില്ല, हाँ, ഭയത്തിന് ദണ്ഡനമുള്ളതിനാൽ തികഞ്ഞ സ്നേഹം ഭയത്തെ പുറത്താക്കി കളയുന്നു. देखो यूहन्ना की यह पत्री में इस प्रकार जो हमारे सामने जो बताते हैं कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता प्रेम में सिद्ध नहीं होता। इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमें प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए और उनको मृत्यु को ना डरा है, और इसलिए कि सिद्ध प्रेम हमारे अंदर बहुत जरूरी है। अजीजों, यह प्रेम भाईचारे की रीति से हम प्राप्त होने के बारे में परमेश्वर की पवित्र शास्त्र में बताते हैं, और इसलिए आने वाले समय में परमेश्वर की इस वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी आशीष का कारण बनाना चाहिए। और परमेश्वर की इस प्रेम और परमेश्वर एक दूसरे को प्रेम करने को खुदा ने हमें बड़ी आशा दे दिया है। ഈ വലിയ പ്രത്യാശയോടുകൂടി ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക। मैं एकांबर शब्द समाप्त होने से पहले परमेश्वर की राज्य में प्रवेश होने का 2 कमांडमेंट से हम पर जो दे देते, और पहला जो कमांडमेंट जो है भाईचारे, दूसरा कमांडमेंट जो है और ऑनर, अतिथि सत्कार करना अनिवार्य है। ये दोनों हमारी व्यक्तिगत जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण और साधना के रूप में हम लेना अनिवार्य है। വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ സത്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും മുന്നേറുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ വാക്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു। നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की इस वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी आनंद का कारण बनाते और बड़ी खुशी का कारण बनाते, इसलिए आशीषों को प्राप्त करके हम आगे चलने को प्रभु हमें मदद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। दीपक सिरसागर है, प्रार्थना में अगुवाई करें। दीपक सिरसागर प्रार्थना में अगुवाई करें।